Hello friends, in this today's video tutorial I'm going to show you one of the case studies of my client project. So let's see the performance which I am getting and the things which we can do in our project actually to improve our performance. So let's start and see the case study. So this is the project of one of my client, and I will show you the performance report, each and everything which is actually important and will help you if you are running your PPC campaigning. So let's see the performance of my campaign. I hope you can see my screen also. So I'm onto the campaign of mine, and you can see some of the campaign which I have designed here, and in this you will see the campaign name display ads, and some of the campaign name you will see here, right? So this is the display network which I have created, and I'm running ads on display network, and some of the campaigns like you will see search network only. So these campaigns I'm running on search network. Right, so let's start with the case studies, the optimization which I have done, and this project is one of my candidate I have actually designed, and I'm getting very good outcome in this project. So let's see what we have done and the things which we can improve in this campaign. So this is the live presentation, a live project I'm showing you. It's running, and the client is having a budget of somewhere around 1 lakh rupees, 1 lakh INR on monthly basis. So let's see the case study. So as you can see, I have started my campaign with the search network. I think last month I started with this. In search network you will see total clicks which I got is somewhere around 327, and impression is 6,000 something. The average CPC which is coming, it's a tour and travel project. I'm running ads for Himachal. So the average CPC which I am getting is somewhere around 33 rupees, and the total cost which I spent it so far is 10,000 rupees. My average position you will see also very less, 4.7, and the total conversion which I got, because I have implemented tracking code onto the website of client, so 25 conversion total I got, and 10,000 rupees I totally spent. So the conversion cost which Google is actually showing to me, it's 432 rupees actually for one conversion. It's a conversion cost, and the conversion rate is somewhere around 7%, which the total which I get from which I'm getting from a search network. But as like the PPC guy work is to reduce the CPC cost. So anyhow, like it's a first month trial, I have given conversion at 400 rupee to a client. So from the next month onwards, it's our responsibility to reduce cost of conversion. So what I have done after that, I have started advertisement on display network. Display network, I would like to tell you, is a very important function of AdWords. Be it any business, you are running any business, I would recommend you to start with display ads, because till the time you will not start display ads, you cannot reduce your cost, because we have to reduce cost and we have to give conversion at less cost, like be it anything, right? So let's see the display network performance which I got. So this is the campaign display ads one of my student have created, because I am into trainings. So I provide trainings on live project. So he enrolled last month, and this month only he created a display campaign, and see the performance which I am getting. But he is lagging somewhere, so I will share you the part where he is actually lacking the loopholes, and with that some of the advanced optimization which we can do here, right? So see what is the things he done in display network. He created display network, display ads. You can see display network here. 2000 is the budget which I have given to him, that create 2000 rupees, take 2000 and start advertisement. And display network mein you will see that he got clicks somewhere around 824 clicks he got. But you will see the display network CPC, it's 14 rupees comparison to search network. Search network mein the costing is somewhere around 33, 34, like this it's going. But in display network you will see 14 is my average CPC, and the total cost which I spent is 12,000, and in that I got somewhere around 54 conversion. So it's a 54 conversion. These conversion are those who have actually filled the form on website, and just if somebody calls on the client number, that conversion we have not tracked till now. So but client told me, I asked client like how many calls he got, unique calls, not these in web page web forms calls. He told me that he got somewhere around 5 to 6 calls also unique. So somewhere around 60 conversion we have generated, and if you will see the conversion cost we have actually reduced. It's somewhere around, if you will see, it's actually somewhere around which we have given report to the client, it's somewhere around 180. So this is the performance which we got from display network. I would recommend, if somebody creating any project, start with the display advertisement. So
I've actually reduced cost for this month, and I'll show you the performance of yesterday which client got. See, yesterday in display ads we have spent it somewhere around 2100 rupees, and client got somewhere around 156 clicks. The conversion, the click cost is also very less, 13 rupees, and he got 11 conversion. So the yesterday conversion cost was somewhere around 191. So as I asked client, he told me that he got 1 or 2 call also. So if I'll see the 13 conversion according to this, so I got somewhere around 180-150 rupees is the conversion cost. So like this, yesterday he got the performance, and Display Network is actually providing very good performance. And now the main question, what are the things he have done in Display Network as he is increasing conversion and reduce my half of the cost of conversion. So see what the things he have implemented in this. In display campaign, if you will see the targeting which he have done, he have used placement targeting, in which he have targeted all those websites, those who are relevant to the client business nature. So let's see how many sites he have targeted, and you can see like if you want to reduce the cost of these conversion, तो आप कैसे ये reduce कर सकते हैं. So let's see कि कैसे आप और reduce कर सकते हैं cost वगैरह. तो if I'll see in placements, what all placements he have targeted actually. So these are the sites which I have actually paused because he have put all these websites on which he is running ads. So I have paused these websites because they are not providing me good conversion. They are consuming more cost. So I have actually paused. But some of the website on which I told them that to run on these sites, because these are good enough as far as conversion is being concerned or cost is being concerned. So let's see the sites on which actually yesterday I got performance. So let's see. This is the matrix you can see here. This is the conversion tab. In conversion, one conversion I got 11 clicks, and the click cost 18 rupee, and I got the total cost which like on this website we have spent it. It's supertraveltime.com. So only one conversion I got, and the conversion cost is 208. So if you will see it's 208, it's fair enough. 200 is something like we can adjust for the tour and travel business. So let's see the other sites on which we got conversion. So here we go. 6 conversion. देखिए 6 conversion आए, and the total spend which done on that website is 414 rupees spend करे. He got 32 clicks from that website. 12 rupees is the average CPC, and he got 6 conversion. तो आप देख रहे हैं conversion cost कितना पड़ रहा है उसको. 69 rupees is the conversion cost which we are getting from this website. What's the name of this website? It's transindiatravels.com. So on this website our ad is running. He actually put client ad on this website by using Display Network, and he got 6 conversion. So the conversion cost you can see 69. So as अगर आपको conversion reduce करना है, कोई कंपनी बोलती है conversion reduce करो या आप अपने बिजनेस के लिए reduce करना चाह रहे हो, तो आफ्टर दैट आप B/B एनालिसिस कर सकते हो जिन साइट्स पे आपको कम कन्वर्जन कॉस्ट पड़ रहा है. आप सिर्फ उन पे ही ऐड चला सकते हो. अगर आज मुझे और कन्वर्जन कॉस्ट रिड्यूस करना है तो मैं सिर्फ इसी साइट पे भी ऐड चला सकता हूं, बिकॉज अगर आप कन्वर्जन देखो तो मेरे को ज्यादा आ रहे हैं और कॉस्टिंग मुझे 69 पड़ रहा है कन्वर्जन कॉस्ट. टोटल 400 रुपीज में, समवेयर अराउंड 400 रुपीज स्पेंड में 6 कन्वर्जन आई गॉट. सो कन्वर्जन रेट आप देखिए 18% मुझे मिल रहा है. तो अगर मैं सिर्फ इस साइट पे भी ऐड चलाऊंगा आई कैन इंक्रीज माई कन्वर्जन. लेट्स सी अनदर केस. यहाँ पे आप देखिए 4 कन्वर्जन आई गॉट फ्रॉम दिस वेबसाइट. 43 क्लिक्स मुझे आए. 10 रुपी मेरा एवरेज सीपीसी पड़ रहा है, इस पर और कम पड़ रहा है. लेट्स सी द वेबसाइट. इट्स manalishimlaexpert.com. तो अगर मैं ये साइट भी लेता हूं तो आई गॉट 10 कन्वर्जन फ्रॉम दीज 2 वेबसाइट्स. अगर मुझे कन्वर्जन कॉस्ट इंक्रीज करना है तो आप देख लीजिए, एक में मुझे 69 का कन्वर्जन कॉस्ट पड़ रहा है और इसमें जो मुझे 4 कन्वर्जन आया इसमें मुझे 112 रुपीज का कन्वर्जन पड़ रहा है. एक साइड पे मेरा कन्वर्जन रेट है 9% का, एक साइड पे मेरा कन्वर्जन रेट है 18% का. तो ये साइट्स हैं जिन पे मुझे बहुत बेटर आउटकम आ रहा है. अगर मुझे और कॉस्टिंग इसकी रिड्यूस करना है, लेट्स से अभी अगर मेरा एवरेज 180, 190 या 200 भी अप्रॉक्स आ रहा है कन्वर्जन कॉस्ट का ओवरऑल अगर मैं देखूं, तो आई कैन रिड्यूस दिस बाय टारगेटिंग ओनली दीज 2 साइट्स जिन पे मुझे कन्वर्जन आ रहा है. तो ऐसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. बट स्टिल इफ आई टेल यू अबाउट द लूप होल्स इन दिस अकाउंट, दैट ही हैव chosen very less sites, very less relevant sites he have chosen,
इन बिगनिंग ऑनवर्ड्स, बिकॉज एक टाइम फ्रेम हमें मिलता है फॉर ऑप्टिमाइजेशन. इट्स 3 to 4 weeks टाइम विच वी एक्चुअली टेक फ्रॉम वी आस्क फ्रॉम क्लाइंट कि हमें इतना टाइम चाहिए टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन. तो मैक्सिमम साइट्स अगर हम प्लेस करते, लेट्स से समवेयर अराउंड 50-60 साइट्स हम प्लेस करते रेलिवेंट टू आवर बिजनेस, डिफरेंट एड ग्रुप में उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैंपेनिंग बनाते, तो पॉसिबिलिटीज थी दैट वी विल गेट सम मोर परफॉर्मिंग साइट्स जिन पर हमें काम आ रहा है. एंड वंस यू विल गेट दैट डेटा, आफ्टर दैट रन ऑन दीज साइट्स, लाइफ लॉन्ग आपके पास वो कैंपेन पड़ा रहेगा, एड साइट्स आपको मिल जाएगी. और अगर नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है उस बिजनेस नेचर से रिलेवेंट, तो आप इजिली उन साइट्स पर एड प्लेस करके डे 1 से कन्वर्जन जनरेट कर सकते थे. तो ये कैंडिडेट था जिसने ये बनाया है. आउटकम स्टिल बेटर इफ यू विल कंपेयर टू द अदर क्लाइंट्स. जैसे और एजेंसीज से मेरा क्लाइंट आया था, तो ही इज गेटिंग समवेयर अराउंड 300, 350, 400 कन्वर्जन कॉस्ट उसको पड़ रहा था एक लीड का. बट वी हैव एक्चुअली रिड्यूस टू 180 एंड दिस प्रोजेक्ट आई गॉट लास्ट मंथ ओनली. तो लास्ट मंथ में ही वी हैव टिल नाउ अगर आप देखें तो 180 समथिंग इज द कन्वर्जन कॉस्ट विच इज पेइंग फॉर 1 लीड. तो इतना हमें पड़ रहा है, राइट. एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, बट देयर मेनी मोर थिंग्स वी कैन टेस्ट. सो ये मैंने एक मैनुअल प्लेसमेंट्स का आपको बताया जिसमें कि आप टारगेटिंग कर सकते थे. मैनुअल प्लेसमेंट में आप वही साइट्स टारगेट कर सकते हैं जिन पे आप चलाना चाह रहे हैं. अच्छा, एक चीज और आपको क्लियर करना चाहूंगा, अगर किसी को नॉलेज है प्लेसमेंट्स का, तो एक होता है कि मैंने ये साइट प्लेस कर दी shimlaindia.net, और एक होता है मैंने कोई इंटरनल पेज प्लेस कर दिया. तो प्लेसमेंट में एक चीज आप जरूर याद रखिएगा कि अगर आप जो भी पेज का यूआरएल यहाँ पे डाल रहे हैं प्लेसमेंट में, उसी पेज पे आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा. ऐसे नहीं कि आपने कोई साइट डाल दी, गूगल रैंडमली किसी भी पेज पे आपका एड दिखा देगा. अगर मैंने shimlaindia.net डाला है तो मेरी एड सिर्फ उसी पेज पे चलेगी, दैट मीन्स मेरे होम पेज पे ही चलेगी. अब यहाँ पे देखिए मैंने hellotravel.com/makeMyTrip डाला है, तो वहां पे एक मेक माई ट्रिप का पेज था जिसमें टूर एंड ट्रैवल का हिमाचल से रेलिवेंट कंटेंट था. तो मैंने वो इंटरनल पेज उससे चूज करवाया, उसने खुद चूज करा है और वो चलाया. ऐसी अगर आप देखें तो ये एक formertourist.com साइट थी, इसका मैंने ये इंटरनल पेज दिया जिसमें हनीमून डेस्टिनेशन इंडिया के बारे में बताया गया है, बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन. तो लाइक दिस यू कैन सी. अब जैसे मैप्स ऑफ इंडिया का देखें, काफी बड़ी साइट है, बट मैंने इंटरनल पेज दिया हिमाचल प्रदेश, और जहां पे कि विजिट कुल्लू मनाली से रिलेटेड कंटेंट था. तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्लेसमेंट चूज कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर गिव दैट पेज यूआरएल ऑन विच यू विल सी कंटेंट रेलिवेंट टू योर बिजनेस नेचर, और उसी पेज पे आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा. ये मिथ है कि भैया किसी भी पेज पे ऐड चल जाएगा, ऐसा नहीं होता. जो पेज आप देंगे उसी पे ऐड चलेगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट रेलिवेंट प्लेसमेंट्स डालिए, क्योंकि अगर यही कोई और चलाता जो लेमैन होता या खुद से स्टडी करके बना रहा है और वो डायरेक्ट अगर साइट डाल देता तो मे भी इतना कन्वर्जन नहीं आएगा आपको. तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा. प्लीज मेक श्योर उसी पेज पे डालें जिस पे रेलिवेंट कंटेंट हो, और उस पेज पे देख ले एडसेंस है कि नहीं, उस वो गूगल पार्टनर साइट है कि नहीं. तो दैट यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम डिस्प्ले प्लानर, वहां से आप चेक कर लें. तो और भी स्कोप था, और भी रेलिवेंट साइट्स में डाल सकता था. आई हैव गिवन हिम अ लिस्ट ऑफ समवेयर अराउंड 20 मोर साइट्स. तो मोस्ट प्रॉब्ली टुडे और टुमारो ही विल अपलोड दिस, बिकॉज मैं ट्रेनिंग्स में हूं. तो जो प्रोजेक्ट मैंने जिस कैंडिडेट को असाइन कर रखा है उस पर वही काम करेगा. एक्चुअली वो एसईओ काम करता था, ही टुक ट्रेनिंग फ्रॉम मी फॉर पीपीसी एंड ही इज डूइंग वेरी गुड. सो ही एज इफ नाउ उसने 4 प्रोजेक्ट्स पे मेरे काम करा है एंड ही इज जनरेटिंग वेरी गुड रेवेन्यू, ही इज मैनेजिंग वेरी वेल. सो जो काम जो कैंडिडेट करता है वही उस पर चेंज के लिए ऑथराइज है मेरी ट्रेनिंग्स में. तो ये उसने काम करा है एंड टुडे और टुमारो ही विल इम्प्रूव एंड डू सम मोर चेंजेस इन दिस अकाउंट टू रिड्यूस कन्वर्जन कॉस्ट. अब अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं चीजें कि अगर मैं और थोड़ी सी चीजों के बारे में फोकस करूं, तो मैं ऑल टाइम रिपोर्ट यहाँ पे पुल करके आपको बताता हूँ. राइट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, शायद कम ही लोग उस चीज के बारे में अवेयर होंगे. मैं एक बार आपसे शेयर कर लेता हूँ. अगर मैं कैंपेन में जाता हूँ, यू विल सी इनवैलिड क्लिक सेक्शन है. इनवैलिड क्लिक सेक्शन मैंने ये एनेबल करा है. अगर मुझे लगता है गूगल पे कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है एज फार एज इनवैलिड क्लिक इज बीन कंसर्न, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू enable this metric called invalid clicks, because till the time you will not enable this metric you will not get updated fraudulent clicks. जो भी इनवैलिड क्लिक्स होते हैं, जो भी गूगल को लगता है नहीं फ्रॉडलेंट एक्टिविटी डन ऑन ऑनलाइन, समबडी क्लिकिंग बैक टू बैक ऑन माय एडवर्टाइजमेंट, यू विल नॉट गेट दिस अपडेटेड फ्रॉडलेंट क्लिक्स हेयर. बिकॉज अगर ये मैट्रिक एनेबल नहीं होगा तो गूगल आपको अपडेट करके नहीं देता. शायद हो भी रहे होंगे तो आपको पता नहीं होगा. सो यू विल गेट सम फेयर आइडिया कि कितने इनवैलिड क्लिक्स हो रहे हैं. एंड इन एवरी हाफ एन आवर और इन 15 मिनट यू हैव टू रिफ्रेश दिस पेज. आप कैंपेन वाले पेज को ही एक बार रिफ्रेश कर दें, लाइक दिस विच आई हैव डन बाय प्रेसिंग F5 की. तो अगर आप इसको रिफ्रेश कर देते हैं
तो गूगल के पास एक अप्रूवल होता है, तो ही विल अपडेट सम ऑफ द इनवैलिड क्लिक विच ही थिंक कि शायद बैक टू बैक कोई इनवैलिड कॉम्पिटिटर आपका क्लिक कर रहा था। मैंने ये अपनी ट्रेनिंग्स में भी दिखाया है, सभी प्रोजेक्ट्स पे दिखाया है। सर्च नेटवर्क पे तो इनवैलिड क्लिक्स होते ही है, बट यू विल सी, ये मेरा डिस्प्ले ऐड है, डिस्प्ले नेटवर्क में चला रहा हूँ। इन डिस्प्ले नेटवर्क ऑल्सो गूगल हैव ट्रैक्ड समवेयर अराउंड 125 इनवैलिड क्लिक्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट सर्च नेटवर्क, ये मेरा सर्च नेटवर्क है, ये आई लाइक इट्स शोइंग 14 इनवैलिड क्लिक्स। तो इट्स वेरी लेस शोइंग, मे बी ज्यादा हो सकते थे, बट अगर आपने सेक्शन ही नहीं एनेबल करा है तो यू विल नॉट गेट दीज इनवैलिड क्लिक्स, तो वो आपको मिलेंगे ही नहीं इनवैलिड क्लिक्स। तो इनवैलिड क्लिक्स एनी हाउ आपको ये फंक्शन एनेबल करना है, एंड यू विल गेट द रेट ऑल्सो, कितना इनवैलिड क्लिक आपका रेट हो रहा है। तो जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट रिफ्रेश योर कैंपेन, टिल द टाइम यू विल नॉट एनेबल इट, इट विल नॉट वर्क 100%। आई एम नॉट गारंटी कि 100% अभी भी काम कर रहा है, बट फेयर इनफ 125 क्लिक्स का कॉस्ट मैंने एनी हाउ बचा लिया है। अगर ये भी ऐड हो जाते मेरे क्लिक्स में तो मेरी कॉस्टिंग समवेयर अराउंड, अगर आप लगा लीजिए 15-16,000 हो जाती, मेरा कन्वर्जन कॉस्ट और बढ़ जाता। तो दिस व्हाट आई हैव डन एंड आई वुड रिकमेंड एवरीबडी, मैं ट्रेनिंग्स में भी बताता हूँ कि यू हैव टू एनेबल दिस सेक्शन, नो मैटर गूगल अपडेट कर रहा है नहीं कर रहा है, बट अगर आपका एनेबल रहेगा तो श्योरली गूगल विल अपडेट ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं होगा कि वो अपडेट ही नहीं हुआ। तो प्लीज चेक इट आउट, कैसे आप इनवैलिड क्लिक सेक्शंस वगैरह एनेबल करेंगे, ठीक है। तो ये एनेबल करने के लिए सिंपल सा है, आपको कॉलम्स में जाना है, यू विल सी अ कॉलम है, go to the customized columns and here you will see one of the this metric invalid click in performance, you will see invalid click, just you have to add on here at right hand side, it will come, मैंने already add कर रखा है, you can see here, and then you need to apply it, apply कर दीजिएगा, you can see it on your components in your matrix, right? So like this you can do. And one more thing very important, so far that candidate also जिसको मैंने प्रोजेक्ट दिया है उसने भी enable नहीं करा है, but during the trainings I am covering all these parameters. There is a one parameter called relative CTR. It's very important to use this parameter, relative CTR. What is this? I'll show you first how to enable relative CTR, the functioning of relative CTR, and why it's so important in display network only. So let's see. What you have to do, click to the column, then click to the customized columns. I also need to see where it actually comes. You will see a tab there. I think it's come in attributes. In attributes you will get, no it's not here, in competitive matrix you will get, yeah, there we go. In competitive matrix you will see a tab relative CTR. You have to just make it on the right hand side, just select this one and it is coming here, it's relative CTR. अब now the question comes, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये relative CTR एक्चुअली है क्या जो मैंने enable करा है। तो let's see first what it's showing to me. Relative CTR is showing me 1.3x. It always gives you value in x. What is this 1.3 and x, and what is relative CTR? First thing is that relative CTR we use only in display campaign, and what relative CTR option gives us, so I'll give you a fair idea. Relative CTR option gives you an idea of how your display ads are performing relative to the other ads that are running on the same place on Google Display Network. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी प्लेसमेंट ले रहे हैं, लेट्स से एग्जांपल देता हूँ, आपने एक साइट ली way2sms.com, इस पे एडसेंस मिला हुआ है, ये गूगल पार्टनर साइट है, आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट को way2sms.com पे प्लेस कर दिया। अब आपका टॉप में ऐड चल रहा है, बट सिर्फ आप ही का ऐड नहीं चलता, वहां पे हर बार कोई विजिटर आएगा तो गूगल रैंडमली एड्स को रोटेट करता रहता है, कुछ कॉम्पिटिटर्स का भी ऐड आएगा। तो गूगल कहता है कि आप अगर रिलेटिव CTR अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं अपना, जो मैं भी आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट स्टेप में, रिलेटिव CTR आपको एक आइडिया देगा कि जिस पोजीशन पे आपका ऐड चल रहा है, जिस भी पर्टिकुलर पार्टनर साइट्स पे, आपके जो और कॉम्पिटिटर आपके बाद जिनकी एड्स डिस्प्ले हो रही है, उनका क्या एवरेज CTR चल रहा है उस पोजीशन का। तो आप अपने CTR को उन कॉम्पिटिटर के एवरेज CTR के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा एड फेयर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, कि मुझे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेट्स से अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देखूं तो मुझे आ रहा है मेरे कॉम्पिटिटर का, जो मैं भी फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे को आ रहा है नोटिस में कि मेरे कॉम्पिटिटर का एवरेज CTR जो आ रहा है उस पोजीशन का, वो आ रहा है 1.50%। बट अगर मैं अपने कैंपेन का CTR देखूं तो मेरे कैंपेन का CTR आ रहा है 1.10%। तो दैट मीन्स 0.40% से मैं लैग कर रहा हूं डिस्प्ले परफॉर्मेंस में। तो अगर मेरा रिलेटिव CTR, एवरेज CTR जो मेरा मतलब जो भी मेरे कॉम्पिटिटर्स का एवरेज CTR आ रहा है उनसे ज्यादा है, तो गूगल विल शो माई एड्स मोर, वो मेरी एड्स को ज्यादा दिखाएगा, इट विल शो माई एड्स मोर कंपेरिजन टू दोज। तो रिलेटिव CTR पे काम करना इज एनी हाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्यू पर्सन्स नो इन डिस्प्ले नेटवर्क की कैसे यूज करना है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एंड ट्रस्ट में मेरे यहाँ से काफी कैंडिडेट्स
जो इंटरव्यूज में गए दे गॉट वेरी गुड पैकेजेस. अभी लास्ट मंथ की अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं फैब की बात करूं तो वन ऑफ माय कैंडिडेट गॉट द हाईएस्ट पैकेज ऑफ 10 लाख. एंड अगर मैं इस मंथ की बात करूं आपका मार्च का, तो मार्च में वन ऑफ माय कैंडिडेट गॉट 8.50 लाख पैकेज. एंड मेरे यहाँ से मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है 95% आफ्टर द ट्रेनिंग दे गॉट जॉब्स. मेरे कैंडिडेट HCL, योगी, इंडिया टुडे ग्रुप, पेंसा मीडिया, ऑलमोस्ट अच्छे सभी ब्रांड्स में काम कर रहे हैं. तो वंस यू विल कम डाउन आई विल शो यू द परफॉर्मेंस कि कौन कौन कैंडिडेट कहाँ लगा है. आई विल शो यू द प्रोफाइल्स ऑल्सो ऑफ दोज कैंडिडेट्स. I do have offer letters of those candidates जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग करी है. तो each and everything I'll show you if you are interested for the advanced training program. So this is what I would like to show you. And relative CTR, now the relative CTR is showing 1.3x. तो आप बोलेंगे मैंने आपको शेयर तो कर दिया कि एवरेज कॉम्पिटिटर, मतलब कॉम्पिटिटर्स के एवरेज पोजीशन का क्या CTR चल रहा है, वो मुझे पता चल जाएगा. बट ये फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या, तो प्लीज नोट इट डाउन. मैं यहाँ पे नोटपैड में भी लिख रहा हूँ. एंड दिस इज माई वेबसाइट, यू कैन विजिट इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी. इट्स ppcexpertclasses.com. So you can visit this website. From there you will get my contact number and you can contact me if interested for the advanced training program. So let's see, it's a relative CTR, the formula of relative CTR. A relative CTR is equals to your CTR, I mean your campaign CTR, divided by the relative CTR which Google have generated, which Google actually generate, and it's multiplied by 100, and the results you will get in percentage because it's tell you the average CTR which other competitors are getting. So let's see कि कितना competitors का आ रहा है. If I'll talk about your CTR, अगर मैं अपना निकालूं तो my CTR it's coming somewhere around 1.10%. 1.10% is my CTR divided by relative CTR. So you can see the relative CTR which is coming, it's 1.3x. You can see here it's 1.3x. So 1.3x is the CTR multiplied by 100. So once you will calculate, you will get a result. So let me calculate this on my calculator. Yeah, so sir, the CTR which I am getting, like multiply by 100, the formula which I have added here, it's like it's for the percentage because the figures you will get in percentage. So better to remove this from here because you will get figures in percentage. That's why I've added multiply by 100. So let's calculate this formula. It's 1.10. It's my CTR, your CTR. So let's see my CTR. It's my CTR. It's 1.10. You can see here. This is the campaign of Mind Display Network. 1.10 is my CTR. So I have in my calculator, I have added it's 1.10. It's divided by the relative CTR according to the formula. So relative CTR which I am getting, it's 1.3. This Google will generate this relative CTR. So 1.3 is the relative CTR divided by 1.3. So let's calculate this. So I am getting 0.84. So this is what is coming, 0.84. So this is 0.84 is the percentage with other competitors, जो और competitors हैं, they are getting average CTR. And if you will calculate according to my CTR, what's the CTR of this campaign, it's 1.10%. So the fair enough CTR जो candidate ने बनाया है, fair enough CTR is getting comparison to other competitors. हमारा फिर भी ज़्यादा है उनसे, point अगर आप देखें तो 20 something percent, 18-20% हम उनसे far better है. So this is anyhow help you about the CTR, कैसा आपका कैंपेन CTR चल रहा है, और हर कैंपेन का अलग अलग आएगा. अगर आपका जो ये रिलेटिव CTR आता है ज़्यादा आता है और आपका CTR कम है, so you have to work on to increase your CTR. और CTR increase करने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें हैं which you have to work on actually. So वो सारी चीज़ें मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, बट ये एक्चुअली आपको देखना है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक द फ्रॉडलेंट एक्टिविटी. सो इनवैलिड ग्लिफ सेक्शन जरूर इनेबल कर ले, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट एन आइडिया कि कितना आपका रेगुलर बेसिस में इनवैलिड ग्लिफ अपडेट हो रहा है. अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा. ये एक्चुअली मेरे कैंडिडेट ने भी अप्लाई करा है, सो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लेता हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी क्लाइंट का बजट आपके पास अच्छा है, ही इज ओनली लुकिंग फॉर द गुड कन्वर्जन, इज सेइंग कि आप मुझे कन्वर्जन दीजिए और बजट का कोई इश्यू नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन यू कैन इंक्रीज बजट, आई विल इंक्रीज बजट. सो व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू, यू विल सी सम ऑफ द साइड कैटेगरी ऑप्शन. आप डिस्प्ले नेटवर्क में जाके, मैं कहाँ पे गया मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ. मैं डिस्प्ले नेटवर्क में गया, प्लेसमेंट से मैंने कुछ साइट्स प्लेस कर रखी थी. आप पेज के फुटर में आइए, यू विल सी ऑप्शन साइड कैटेगरी ऑप्शन. मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक करा,
और इस ऑप्शन पे ये इंटरव्यूज में भी काफी पूछा जाता है, इवन इसके सर्टिफिकेशन में भी क्वेश्चन आएंगे। साइड कैटेगरी एक्सक्लूजन ये टूल होता है आपका। इसमें यू विल सी सम ऑफ द टॉपिक्स जो सेंसिटिव टॉपिक, डिजिटल टॉपिक, कुछ प्लेसमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो गूगल ने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सो इफ यू वांट, लाइक जैसे कि मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि बिलो द फोल्ड आपका ऐड ना चले, मतलब कोई भी पेज है आपका जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी एडवर्टीजमेंट, सो अगर आप चाहते हैं कि अगर ये जो बिलो द फोल्ड ऑप्शन है, ये मैं आपको ये बता रहा था कि अगर कोई भी साइट्स पे आप अपनी एडवर्टीजमेंट चलाते हैं और उसमें आपका ऐड अगर सेकंड फोल्ड में आता है, बिलो द फर्स्ट फोल्ड अगर आपका ऐड आता है, तो अगर आप वहां पे अपनी एडवर्टीजमेंट स्टॉप करना चाह रहे हैं तो यू कैन एक्सक्लूड फ्रॉम हियर डायरेक्टली उन जो भी वेबसाइट्स आपने टारगेट करी है उनके बिलो द फोल्ड अगर फुटर में कहीं ऐड चल रहा है या मिडिल पार्ट में आ रहा है, फर्स्ट फोल्ड के नीचे ऐड आ रहा है, तो वहां पे आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगा। तो यहां से भी कुछ कन्वर्जन आप इंक्रीज कर सकते हैं, आप लेटर ऑन एडवांस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने केस बोला कि अगर मुझे सीटीआर इंक्रीज करना है, तो सीटीआर इंक्रीज करने के लिए तो नॉर्मल स्टेप्स है, सब यही बताएंगे कि आप अपना एड रेलिवेंट बनाइए कीवर्ड से, और अपना जो इमेज है उसको अट्रैक्टिव बनाइए, कॉल टू एक्शन वर्ड ज्यादा यूज करिए, अपने डिस्प्ले यूआरएल को विजिबल करिए, अपने जैसे डिस्काउंट्स वाली टर्म्स है कॉल टू एक्शन उनको ज्यादा फोकस करिए, इमेजेस क्लीन रखिए और शॉर्ट कंटेंट रखिए, और अपना जो भी आप यूज कर रहे हैं इमेज वगैरह वो क्वालिटी इमेजेस आप यूज करिए, वो चीज ठीक है। बट अगर रिलेटिव से अगर आपको सीटीआर वगैरह अपना और भी इंक्रीज करना है, तो अगर बिलो द फोल्ड आपका चल रहा है तो आप उसको भी आप अपना मतलब एक्सक्लूड कर सकते हैं कि आपका पेज, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो बिलो द फोल्ड पेज पे नहीं आएगा, और आपका जब भी एड फर्स्ट फोल्ड पे ट्रिगर होगा तो ही आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। फ्रीक्वेंसी कैपिंग आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप लिमिट कर सकते हैं कि एक यूनिक यूजर को पार्टनर साइट्स पे इन अ वीक, ऑन डेली बेसिस और मंथली बेसिस कितनी बार आप एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाह रहे हैं। अगर आपकी किसी साइट पे मतलब एडल्ट कंटेंट है या कुछ और चीजें हैं जो कैटेगरीज हैं, तो आप इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप करके अपना सीटीआर इंक्रीज कर सकते हैं। ट्राई टू टारगेट मोर रेलिवेंट साइट्स अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नेचर, तो ऑटोमेटिकली सीटीआर आपका बेटर परफॉर्म करेगा। ये एक फेयर आइडिया आपको दे रहा हूँ, सारी चीजें मैं वीडियो में नहीं शेयर कर सकता, और भी एडवांस में बहुत सारी चीजें हैं डिस्प्ले में, डिस्प्ले बहुत वास्ट है। और आपको ये भी एक चीज मैं बता दूं, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप कहीं ट्राई कर रहे हैं, आप ग्रो करना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो डिस्प्ले के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप पीपीसी की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप आपके डिस्प्ले बेस्ड होते हैं, क्योंकि डिस्प्ले इज नॉट एन ईजी नेटवर्क टू वर्क ऑन कि आपने बहुत इजी तरीके से करा और यू आर जनरेटिंग कन्वर्जन। बट अगर आपको अच्छे लेवल पे काम करना आता है, यू कैन जनरेट मैक्सिमम कन्वर्जन, और सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है कि अगर डिस्प्ले यूज कर रहे हैं तो यू कैन रिड्यूस योर कन्वर्जन कॉस्ट, आप सीपीसी रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ इट अगर आपको सीटीआर और कन्वर्जन इंक्रीज करना है, तो आई थिंक some days back only मेरे कैंडिडेट ने यहाँ पे रीमार्केटिंग भी यूज करा है डिस्प्ले का, सो ही गॉट 1 click एंड यू कैन सी द क्लिक कॉस्ट विच ही इज गेटिंग। अगर मैं डिस्प्ले में ऐड चला रहा हूँ अपना ये वाला, तो मेरे जो एक्चुअल सीपीसी पड़ रहा है वो पड़ रहा है 14, और अगर मैं रीमार्केटिंग चला रहा हूँ तो आई एम गेटिंग अ क्लिक कॉस्ट 9 रुपी एंड माई पोजिशन इज सेम 1। So remarketing anyhow help you to reduce your cost, and with that the chances more to get a conversion. So far अभी कल ही परसों एक्टिवेट हुआ है, so like just yesterday only he activated the remarketing. तो अभी तो इसमें नहीं हुआ है, but he set it up remarketing last month only. तो वो मेरी लिस्ट वगैरह पूरी रेडी है, एंड डिस्प्ले के लिए वी आर एलिजिबल, वी हैव मोर देन 100 विजिटर्स इन आवर लिस्ट, so like we can easily run remarketing and it's actually running. आप देख सकते हैं impression clicks we are getting. So let's see if जो भी response I'll get, I'll share you on my next video presentation the response which I'm getting from remarketing, and there are many more things which you can work on. जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि एक नया फीचर आया है गूगल में, एडवर्ड्स में लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है GSP, शॉर्ट में टर्म यूज कर रहा हूँ, GSP फुल फॉर्म है इसका, जीमेल स्पॉन्सर्ड प्रमोशन। एक मैंने भी क्लाइंट के लिए भी अप्रूवल लिया है GSP का, तो आई ट्राई टू शो यू वन ऑफ द वीडियो प्रेजेंटेशन ऑन GSP ऑल्सो। अब आप बोलेंगे GSP फंक्शन क्या है, इंडिया में लास्ट ईयर आया है क्या एग्जैक्टली? आपने कभी देखा होगा गूगल ने जीमेल आईडी को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशनल। इन प्रमोशनल वाले में अगर आप देखें तो कुछ आपको मेल्स आती है कलर में, उसमें आई करके आता है एड्स बाय गूगल करके, स्पॉन्सर्ड एड्स होती हैं, वो जो एड्स आती हैं वो आपका एडवर्ड्स के थ्रू आती है, और उन एड्स पे अगर आप क्लिक करते हैं ईमेल पे, तो ईमेल फॉर्मेट में उनका लैंडिंग पेज ओपन होता है, जैसे ईमेल आपकी ओपन होती है, और वो एक इनबिल्ट टेम्पलेट होता है, उसमें इंक्वायरी फॉर्म होता है, कंटेंट होता है, आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने इन क्लाइंट्स को भी अप्रोच करा है। सो ये इन्होंने बोला है कि पाइपलाइन में है, तो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 15 days 10 days आई विल गेट अप्रूवल फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो, बिकॉज ही इज हैविंग अ बजट ऑफ मोर देन 1 lakh इन अ मंथ, तो आई इजिली गेट अप्रूवल फ्रॉम गूगल, तो वो भी चीज मुझे मिल जाएगा। बट फॉर वन ऑफ माई क्लाइंट द अप्रूवल इज इन प्रोसेस, तो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 1 or 2 days आई विल गेट दैट। उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि मैं कॉम्पिटिटर्स के डोमेन भी टारगेट कर सकता हूँ।
अगर मुझे लगता है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, लेट्स से xyz.com, और वो कम्पीट करता है, सर्च में ऐड चलाता है, काफी उसको इंक्वायरीज आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू दैट डोमेन जिन जिन लोगों को मेल कर रहा है, जो भी वो मेल उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स वगैरह रिगार्डिंग टूर्स एंड ट्रैवल कोड्स, और जो भी मेल्स वो शूट कर रहे हैं जिनको, मैं उन ऑडियंसेस को भी टारगेट कर सकता हूँ जीएसपी के थ्रू। तो मैं उन ऑडियंसेस को भी टारगेट कर सकता हूँ। डिफरेंट टाइप की टारगेटिंग है, कीवर्ड बेस में कर सकता हूँ, डोमेन बेस में कर सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक बहुत एड ऑन फीचर है, इससे भी आप अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली व्हाट आई हैव सीन, कन्वर्जन आपका ग्रो करेगा। मैंने एक दो एजेंसीज के लिए भी काम करा है उस पर, तो कन्वर्जन रेट बेटर आएगा, नो डाउट। और वो टीजर एड्स होती हैं आपका, और जो नॉर्मल एड्स होती हैं वो तो आप चला सकते हैं, mail.google.co.in डालिए और इन टॉप सेंटर एड्स उनको बोलते हैं, वहां पे आपका एड आ जाएगा। बट टीजर एड्स के लिए मैंने अप्रूवल लिया हुआ है, लेट्स सी कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। अगर मेरा स्टार्ट हुआ विद इन 1 or 2 डे, आई विल शो यू द लाइव परफॉर्मेंस ऑल्सो ऑन द जीएसपी इंटरफेस विच आई हैव एक्चुअली गिवन अप्रूवल टू गूगल। तो अगर वो आता है तो आई विल शेयर यू दैट ऑल्सो, इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्प्ले ओनली, तो एक सेपरेट मेरे को लेना पड़ेगा इंटरफेस, तो आई विल शो यू द परफॉर्मेंस रिजल्ट ऑन टू इट। तो ये सारे मेरे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में भी कवर है। आई एम फोकसिंग मोर ऑन एडवांस पार्ट, बिकॉज बेसिक्स तो आप ऑनलाइन पढ़ के भी कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग आई हैव शेयर्ड विद यू, आई होप आपको ठीक लगा होगा। तो जो रियल टाइम परफॉर्मेंस था, आई शेयर्ड यू दैट, एंड क्लाइंट इज गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। इवन हम एडवांस में भी ट्रैकिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला मोबाइल फोन पे मैं भी ट्रैकिंग नहीं कर रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू द सेशन जो भी बैच चल रहा है मेरा, उसमें इन नेक्स्ट ऑफ माई बैच आई कवर हाउ टू ट्रैक कन्वर्जन्स फ्रॉम मोबाइल डिवाइस ऑल्सो। तो वो सारी चीजें भी मैं उनको बताऊंगा कि अगर मोबाइल पे कोई वेबसाइट ओपन करता है और मेरे नंबर पे हिट करता है, तो नंबर डायल पैड में आता है, सो मेनी टाइम्स द विजिटर हिट ऑन दैट नंबर, इट विल गिव अस अ काउंट एज अ कन्वर्जन इन आवर रिपोर्ट्स। तो वो सारी चीजें भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो कैंपेनिंग कैसे होता है मेरे मॉड्यूल का भी पार्ट है, बेसिक में जरूर कवर करता हूं, बट आई विल फोकस मोर ऑन एडवांस पार्ट, बिकॉज एडवांस से ही यू कैन इम्प्रूव, यू कैन वर्क, और ये चीजें इंटरव्यू में जब आप बताते हैं तो इट विल गिव एन गुड इम्पैक्ट की आप चीजें इन डेप्थ में यूज कर रहे हैं। सो दिस इज लाइव केस स्टडी आई शेयर विद यू, एंड ऐसे ही मेरे पे काफी प्रोजेक्ट्स हैं। लेट्स से करंटली आई एम वर्किंग ऑन 25 प्रोजेक्ट्स, तो डिफरेंट डोमेन्स के ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई एम कवरिंग लाइक सभी डोमेन्स में मैं ट्रेनिंग्स आपको कराऊंगा। विद दैट जो भी नया प्रोजेक्ट आता है आई गिव यू सेल्फ, अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो ये सारे मेरे मॉड्यूल में इंक्लूडेड है। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ काम कराऊंगा। वन ऑफ द केस स्टडी ऑफ टूर एंड ट्रैवल बिजनेस विच आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, तो वो मैंने आपसे शेयर करा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे। थैंक यू।